परिवार में नई बहू आई जिसका नाम सुजाता था। सुजाता माँ दुर्गा में बहुत यकीन रखती थी और दान पुण्य और सभी अच्छे कर्म करती। लेकिन सुजाता की सास दया उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थी। वो बहुत ही कंजूस थी और ना ही कोई दान पुण्य करती। विवाह के कुछ समय बाद ही सुजाता के पति के कारोबार में घाटा होने लगता है और वो लोग पहले से गरीब होने लगते हैं। माँ, अब हम क्या करेंगे? इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसकी भरपाई कर पाना भी संभव नहीं है। बेटा, मुझे लगता है किसी की बहुत बुरी नजर लग गई है। हाँ बेटा, मुझे भी यही लगता है। मुझे तो लगता है तेरी पत्नी हमारे लिए बहुत बुरी साबित हुई। ऐसी कोई To another amazing story from our Sas Bahu series. Today's tale is called The Miser Mother-in-Law's Navratri, a heartwarming and hilarious Navratri special that will make you laugh, think, and reflect. Get ready to discover how devotion, drama, and a little dose of deception all come together in one unforgettable story. Studio microphone, scene 1:030 to 1:30. In a small town in India, lived a woman named Shanda Devi, a classic miserly mother-in-law. She was known for counting every grain of rice and measuring milk to the last drop. Her daughter-in-law, Rani, was used to the strict household rules and the never-ending lectures about saving money. But as Navratri approached, something strange happened. Shanda Devi suddenly became overly spiritual. She started decorating the house, chanting loudly, organizing prayers, and even offering prasad to neighbors. Everyone was shocked, especially Rani. Studio microphone, scene 2:130 to 2:30. Rani noticed things weren't what they seemed. The sweets offered to the goddess were low quality. The fruits were old, and the decorations were reused from past years. Shanda Devi even gave leftover food as prasad the next day. Still, she continued putting on a grand show. Visitors praised her devotion. Neighbors clapped. But Rani knew something was off. Studio microphone, scene 3 to 2:30 to 3:30. On the 7th day of Navratri, a local priest visited the home. Shanda Devi proudly served him a meal, bragging about her expensive offerings. But the priest fell ill shortly after eating. Rumors spread quickly. People began to question her intentions. Rani finally spoke up, revealing how her mother-in-law had been cutting corners, pretending to be generous while saving every rupee. Studio microphone, scene 4 to 3:30 to 4:30. The truth came out, and so did the lesson. Worship means nothing without honesty. Devotion isn't in the quantity of prasad or the size of the celebration, it's in the purity of your heart. Ashamed, Shanda Devi apologized and slowly began to change. From that day, she became more thoughtful, not just about religion, but about the people around her. Studio microphone, OUTRO 4:30 to 5 o'clock. So, what did we learn today? Don't pretend to be good just for show. True devotion lies in honesty, humility, and kindness. If you like this story, don't forget to like, share, and subscribe. Drop a comment below if you've met someone like our Kanja Sas. See you in the next story. अब बाहर खेल रही थी, मैं उन्हें ले आई। सुजाता वहाँ से चली जाती है और दया भी खाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन सुजाता और दया दोनों को पता नहीं था कि कन्याओं के रूप में साक्षात माँ दुर्गा के 9 स्वरूप आए हैं। सुजाता और उसका पति कन्याओं को भोजन परोसने लगते हैं। कन्याएं थोड़ा भोजन समाप्त करती हैं और फिर कहती हैं, भोजन बहुत अच्छा बना है, हमें थोड़ा और चाहिए। दया थोड़ा और भोजन परोसती है और मन ही मन सोचती है, ये तो सब लोगों के हिस्से का खाना खा जाएंगी, अब क्या करूं? दोबारा खाना समाप्त करके कन्याएं फिर से भोजन मांगती हैं। अब तो सुजाता को भी चिंता होने लगी थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी सास ने कम ही भोजन बनाया है।
अब भोजन समाप्त हो गया था, लेकिन कन्याएं अब तक भूखी थी। बच्चों, भोजन समाप्त हो गया है, तुम यहाँ से जाओ। छोटी हो, अब पेट भर ही गया होगा तुम्हारा। नहीं, अभी और भूख लगी है। आज के दिन तो पेट भर भोजन कराओगी ना? लेकिन सारा भोजन तो समाप्त हो गया। तुम्हारी रसोई में 1 कड़ चावल और 1 चना बचा है। ये बात सुनकर दोनों चौंक जाती हैं और कहती हैं, ये कैसे संभव है? ये तो कोई चमत्कार है। सुजाता वही चावल और चने ले आती है और परोस देती है। उसे खाते ही सभी कन्याएं कहती हैं, हाँ, मेरा और बाकी सबका पेट भर गया है। पर ये कैसे हो सकता है? इतना बोलते ही वो 9 कन्याएं अपने असली रूप में आ जाती हैं। हे माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आप इस रूप में प्रकट हुई हैं। दया, ये सब तुम्हारी बहू की श्रद्धा और भक्ति का परिणाम है। तुम्हारे घर परेशानी तुम्हारी बहू नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रण को पूरा ना करने और कंजूस स्वभाव का नतीजा है। ये देखकर पूरा परिवार उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। हे माँ, अब कभी हमारा ये प्रण अधूरा नहीं रहेगा। अब हर वर्ष हम 9 दिन व्रत और कन्या भोज करेंगे। मेरी गलती क्षमा करो माँ। सुजाता, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। अब कभी कंजूसी नहीं करूँगी। दया, मैंने तुम्हें माफ किया, पर अब कभी भी तुम ऐसी भूल मत करना। ये बात सुनकर उनका पूरा परिवार माँ दुर्गा के चरणों में झुक जाता है और उसी के 2 दिनों बाद ही कारोबार की सारी परेशानियां दूर होने लगती हैं और फिर से उनका जीवन खुशी भरा हो जाता है और उनका कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। और अब से हर वर्ष वो माँ दुर्गा के व्रत रखते और कन्या भोज भी कराते। बोलो अम्बे माता की जय। तो ये थी